मुक्ति दिलाए, अंधेरों मेरा दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का मोहिया यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
ابھی دعا کریں گے. کون دعا میں رہنمائی کرے گا خداوند کے بندہ کے لیے آج جو کلام ہمارے ساتھ شیئر کرنے کو ہے؟ اگر باجی نادیہ اگر آ جائیں سامنے، آپ دعا ہمارے ساتھ ہیں. خداوندوں کے خداوند، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک خداوند، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں خداوند کہ آپ کا تخت ہمارے درمیان لگ جاتا ہے. جب آپ کی پرستش خداوند آپ کے بندوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے خداوند، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو، فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر بھیجتے ہیں. ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند پاک خدا کہ آپ کا کلام زندہ اور پاک اور پوتر ہے خداوند، جو بند اور گودے سے ہو کر گزر جاتا ہے. اور خداوند پاک خدا آپ کا کلام جو کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج ہم اس جماعت کو آپ کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں خداوند پاک خدا جی کہ آپ کا آنا جو جلد ممکن ہے. یا رب پتا ہماری اولادوں کو خداوند پاک خدا پاک کیجیے. یہ اولاد جو آپ نے انعام کے طور پر ہمیں دی ہے خداوند، یہ تحفے جو آپ نے ہمیں دیے ہیں، ہم سب پھر خداوند ان کے روح بدن جان کو آپ کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں خداوند ان کے خیالوں کو پاک کیجیے، ان کی سوچوں کو پاک کیجیے، ان کی پوشاکوں کو پاک کیجیے. ان کے اندر سے سنگین دل نکلے اور گوشت دل بھریے خداوند، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ جو دعا ایمان سے کی جائے گی وہ میں اس کا جواب دوں گا. ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں یہوہ پتا کہ آپ نے ہمیں باپ کہنے کا حق بخشا ہے. آسمانی پتا، ہم آسمانی باپ سے یسوع کے نام میں ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں آپ ہمیں عطا کرتے ہیں. اسپیشلی خداوند جی میں اپنے خادم ڈاکٹر ہیل کے لیے، ان کے خاندان کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں، جن کے وسیلہ سے خداوند پاک خدا آج ہمارے بچے اس جگہ پر موجود ہیں. اور خداوند پاک خدا وہ ہر طرح کی لعنت سے بچ کر خداوند اس جگہ پر آپ کے یسوع نام کو لے سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں اور وہ سن سکتے ہیں. میں منت کرتی ہوں خداوند ہمارے بچوں کے بند کان یسوع کے نام سے کھل جائیں، ہمارے بچوں کی بند آنکھیں یسوع کے نام سے کھل جائیں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے ایسے نہ ہو کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھے اور سنتے ہوئے بھی نہ سنے. آسمانی پتا، میں اپنے بچوں کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس خاندان کی پوری کوشش کے لیے خداوند میں آپ کی میگا بلیسنگ کو مانگتی ہوں، تاکہ خداوند پاک خدا ڈاکٹر ہیل اور زیادہ گہرے میں جائیں اور ہمارے بچوں کے لیے اور اچھے سے اچھے پلان کر پائے خداوند، جو آپ کے پاس لے آنے کا وسیلہ کریں. خداوند پاک خدا میں ساری عبادت کو آپ کے یسوع کے نام سے آپ کے ہینڈ اوور کرتی ہوں. اور آپ کے خادم کو جو آپ کے کلام کو پیش کرنے کو ہیں خداوند، میں ان کا منہ بنیے خداوند، ان کی زبان کو مسا کیجیے خداوند پاک خدا. خداوند ایسا نہ ہو کہ وہ بلکہ آپ کا پاک روح خداوند پورے ماحول کو، پوری ہواؤں اور فضاؤں کو کنٹرول کرے. یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے مانگتی ہوں اور پا لیتی ہوں. آمین. ہم بہت شکر گزار ہیں آج خداوند کے بندہ بردر ساجد پریم. کئی لوگ سن چکے ہیں ان کے میسیجز حیدرآباد چرچ میں، اور بڑے ہی پاورفل طریقے سے، اور خدا ان کو بہت ہی زبردست طریقے سے استعمال کرتا رہا ہے پچھلے ہفتوں میں. اور ہماری خواہش تھی، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نہ صرف میوزک سیکھیں، بلکہ جب کہ وہ سیکھ رہے ہیں چرچ میوزک، اور آئندہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں آپ جو بچے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ جو ہے خداوند کے لیے ورشپ کریں گے. اور ورشپ لیڈرز جب ہم کہتے ہیں چرچ میں، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور بغیر خدا کی کو نزدیکی سے جانے، بغیر اس کے کلام سے واقفیت کے ورشپ کرنا جو ہے، اور وہ بھی لیڈ کرنا، یہ ناممکن ہے. اور یہ سارا جو قوت ہے، یہ طاقت ہے، حکمت ہے، یہ صرف اور صرف ہمیں خداوند کے وسیلہ سے ملتی ہے. اور ہم شکر گزار ہیں بھائی ساجد کے لیے. میں بتاتا چلوں
बाय प्रोफेशन रजिस्टर्ड नर्स हैं और उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोमा इन नर्सिंग किया, फिर ही इज़ स्पेशलिस्ट इन कार्डियक मेडिसिन, आई थिंक कार्डियक स्पेशलाइजेशन इन्होंने बताया, और पोस्ट RN BSN डिग्री फ्रॉम दाओ यूनिवर्सिटी कराची से, और इसके साथ साथ एसोसिएट डिग्री फ्रॉम न्यू लाइफ थियोलॉजिकल सेमिनरी यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल जो है। यानी ये ना सिर्फ प्रोफेशनली बड़े साउंड हैं और बल्कि इसके साथ साथ ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वो खुदावंद के कलाम से गहरी वाकफियत रखते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं कि आज वो हमारे बच्चों के साथ, आप सबके साथ जो है कलाम शेयर करेंगे। तो मैं प्लीज़ आपकी भरपूर तालियों में हम वेलकम करते हैं। Mic check, 1 2 3. 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 Mic check. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mic check, 1 2 3. Mic check, 1 2 3. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mic check, 1 2 3. Mic check, 1 2 3. Mic check, 1 2 3. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावंद मदद कर साउंड सिस्टम को तेरे कंट्रोल में दे, माइक को तेरे कंट्रोल में दे दे, रास्ता का मदद कर, ये मेरे सेकंड तेरे पास। प्लीज God, प्लीज God. Yeah. खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी को सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मसीह में खुश होंगे। आमीन, प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूँ कि जब तक साउंड सेट हो रहा है तब तक सारी जमात अपने कदमों में खड़ी हो जाएगी और हम एक दुआया कोर्स गाएंगे जब तक सिस्टम सेट हो जाए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। खुदावंद यहाँ मौजूद है। आमीन। खुदावंद की रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रही है और हमें ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, वो वाकई में है। आमीन, प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूँ हम दुआया कोर्स गाएंगे, हाथों को आसमान की तरफ उठाकर और आंखों को बंद करके खुदा की हजूरी को महसूस करें, इधर उधर ध्यान न लगाएं।
Thank you, Jesus. 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 You, Jesus. Praise God. मैं चाहता हूँ सब जो है वो अपने लिए, सब अपने लिए दुआ करें और सादिक चलाए, खुदा उसे जवाब दे। कौन चलाए? आप सब सादिक है और चला के जोर से मुंह खोल के आसमान पर हाथ उठाकर दुआ कीजिए और अपने लिए कलाम मांगे। सब अपने लिए कलाम मांगे। मैं भी कलाम मांगता हूँ अपने लिए, आप भी मांगे। कोई जुबान चुप ना रहे, मुझे आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। रसा खदरा बरसा खंदरा। अय आसमानी बाप खुदा, आज तू मुझसे कलाम कर, आज तू मुझसे बात कर। अय खुदा, मैं तेरी हजूरी में आया हूँ और मैं तेरा तालिबगार हूँ। जो तेरे तालिबगार है वो सारे यहाँ पे मौजूद है। आज तू हमसे बात कर, हर तरह की तारीकी यीशु के नाम से जाती रहे, फजल और सच्चाई से भर दे। खुदावन मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, खुदावन मैं अपना बदन जान रूह देता हूँ। खुदावन तू यहाँ मौजूद है, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मुझसे कलाम कर, मुझसे बात कर, समझने वाला दिल दे, समझने वाला दिल दे, समझ में जवान कर। रसा के देरी बला रसा खंडारा, एक एक जान, एक एक रूह को खुदा अपनी कुदरत से, अपने रूह के मामूरे से और अपने कलाम से भर दे। खुदा हम खाली हाथ आए हैं लेकिन कसरत से कलाम को लेकर आएंगे। हम खाली हाथ आए हैं लेकिन कसरत से तेरी रूह को लेकर आएंगे। रसा खेरे बरसा कांदारा, यीशु ज़हन खोल दे जैसे तूने शर्गिदों का ज़हन खोला। ज़हन खोल दे जैसे तूने शर्गिदों का ज़हन खोला, ताकि जब हम किताब मुकद्दस पढ़े तेरी बातों को पहचान सके, तेरी बातों को जान सके, तेरी हजूरी को रिसीव करने वाले बने। खुदा बड़ी मदद कर। मैं ना बोलूं, तेरा रो बोले। मैं ना सिखाऊं, तू सिखाए। खुदा ये रबारा सेकंडरा वाला रसकांडरा। तेरा शुक्र एक एक जान, एक एक रूह को खुदा यीशु तूने छुआ है। तू पूरी सेशन को लेना, टेक ओवर, कंट्रोल कर ले यीशु के नाम से, आमीन। सबसे पहले मैं आसमानी बाप का शुक्रगुजार हूँ। तशरीफ रखिए, थैंक यू। तशरीफ रखिए, प्लीज सिट डाउन। सबसे पहले मैं आसमानी बाप का शुक्रगुजार हूँ कि मसीह यीशु के वसीला से ये सब हुआ कि मैं आप तक पहुँचा। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ रहील भाई का और बहना का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे बात कर सकूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम हादसाती तौर पर नहीं इधर बैठे हुए। ये एक्सीडेंटल नहीं है कि आप अचानक से इधर आ गए और बैठ गए, मैं अचानक से इधर आ गया, खड़ा हो गया। ये हादसाती तौर पर बिल्कुल भी नहीं है। इसको पहले आप क्लियर कर लीजिए। ये सब आसमानी बाप की प्लान के मुताबिक था। आमीन, प्रेज़ गॉड। आज का दिन आसमानी बाप की प्लान के मुताबिक था। और ये प्लान पता कब का था? ये प्लान आसमान और जमीन बनने से पहले प्लान था। प्लान किस चीज का था? मैं कल दुआ में बैठा हुआ था, आप लोगों के लिए कलाम मांग रहा था, तो खुदावंद ने मुझे ये गाइड किया कि हमें जवान बनने की जरूरत है। क्या बनने की जरूरत है? जवान। अब आप तो कहेंगे यार हम तो ऑलरेडी जवान है, किस बात के लिए जवान? इसका इको थोड़ा कम कर दीजिएगा, इको। हम तो ऑलरेडी जवान है, किस बात की जवानी की बात हो रही है? मैं और आप जवानी की डेफिनेशन ये समझते हैं कि शायद जिसके सफ़ेद बाल है वो जवानी से गुजर गया है और जिसके काले बाल है वो जवान है। लेकिन कलाम की ये डेफिनेशन नहीं है। आई एम सॉरी टू से, कलाम एज के हिसाब से बात नहीं करता। पौलुस रसूल कहते हैं समझ में जवान बनो। किसमें? तो हमें समझ में जवान बनने की जरूरत है। मैच्योरिटी सफेद बालों से नहीं आती, मैच्योरिटी खुदा के अहकाम पढ़ने से आती है। आमीन, प्रेज़ गॉड। समझ में जवान बनने की जरूरत है, ये खुदावंद ने मुझे बताया।
ये नहीं कहा करें कि हम छोटे बच्चे हैं। और दूसरा जो खुदा ने खास बात बताई आप लोगों के लिए, और बड़े बोझ के साथ मैं कहता हूं, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए सब यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, लेकिन ये मैं आपको बताने लगा, ये नबूवत करने लगा, प्रेडिक्शन फ्यूचर के बारे में बताने लगा आप लोगों के। बिल्कुल ये ना समझे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर्स हैं। मुझे खुदावंद की रूह ने गाइड किया, आप ही में से खुदावंद फॉलोवर्स के साथ साथ उसको तरक्की देके लीडरशिप का रोल देगा। आमीन। और लीडर के साथ साथ सिर्फ लीडर नहीं, बल्कि आपको और आगे लेके जाएगा और आप एजेंट ऑफ चेंज बन जाएंगे। तब्दीली आपके वसीला से आएगी। आमीन। इनकलाब आपके वसीला से आएगा। खुदावंद ने आपसे आज बात की है, इसको फेंकिएगा नहीं। मैं अभी सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कायम रहें इन बातों में। हम बच्चे नहीं हैं, हमें अपनी पर्सनैलिटी को जानना है, हम है कौन। मेरे साथ निकालिए जरा अमाल की किताब, Praise God, praise God। आज अपनी पर्सनैलिटी को जान लीजिए कि हम है कौन। आमीन। आवाज आनी चाहिए आमीन। हालेलुया। जोर से बच्चों, हालेलुया, हालेलुया। अपनी पर्सनालिटी को जाने। अमाल की किताब 2 बाब और उसकी 17 है। हम बच्चे नहीं हैं, हमें खुदावंद आज समझ में मैच्योर करेगा। किसमें? समझ में जवान बनने की जरूरत है। मैं ऐसे बुजुर्गों को भी जानता हूं जिनके सफेद बाल हो गए हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो इनमैच्योर बातें करते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने कलाम के वसीला से मुझे मैच्योरिटी दी है। आमीन। जरा पढ़े जरा अमाल की किताब 2 बाब और उसकी 17 है। जरा बुलंद आवाज से साथ साथ हवाले पढ़ते रहेंगे, साथ साथ खुदावंद का कलाम सुनते रहेंगे। जी, कोई भी भाई या बहन, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा। ये आखिरी दिन चल रहे हैं। कौन से दिन चल रहे हैं? यीशु मसीह के जी उठने के बाद उस वक्त से लेकर अब तक, जब तक मसीह आ ना जाए तब तक आखिरी दिन चल रहे हैं। तो आखिरी दिन में हम यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं और खुदा कहता है कि आखिरी दिनों में क्या होगा। खुदा क्या फरमाता है आखिरी दिनों में क्या होगा? पढ़िए कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पे रूह डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी, प्रोफेसी करेंगी, कलाम सुनाएंगी। कौन? बच्चे। बेटे बेटियां कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। ये बिल्कुल ना समझे कि हम छोटे हैं, हमसे खुदा कलाम नहीं करता। खुदा कलाम करता है। मैं ये भी बताऊंगा, इब्लीस भी हमें पकड़ता है। हाँ जी, हम ये अगर माँ बाप कहते हैं ना, नहीं जी बच्चे तो हाली बहुत छोटे ने, दुआ नहीं कर सकते, रोजा नहीं रख सकते, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इब्लीस पकड़ लेता है। ये इब्लीस पकड़ लेता है। ये क्लियर कॉन्सेप्ट करे कि खुदा हमसे कलाम करता है। आखिर जमाना में बच्चों को खुदा चुनेगा प्रोफेसीज के लिए। आगे पढ़े। और तुम्हारे जवान कौन? ये सब जवान, हम जवान बैठे हुए हैं यहाँ पे, जवान है। हम सब जवान क्या देखेंगे? रोया देखेंगे। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, जब जब मैंने दुआ की है, किसी बच्चे ने मुझे आके बताया कि मैंने खुली आंखों से एक शख्स चलते हुए देखा है, बाइबल मुकद्दस वो मेरे पास लेकर आ रहा है। रोया देखेंगे। खुदावंद आपसे कलाम इस कदर करेगा कि आप खुली आंखों से, खुदा आपको इमेजिनेशन देगा, खुली आंखों से आप चीजें देखेंगे और खुदावंद आपसे काम लेगा। ये आज के बाद ऐसा होगा क्योंकि खुदावंद आपको रोया भी दिखाएगा और नबूवत भी दिखाएगा। लेकिन आप कहते हो नहीं जी मैं तो बच्चा हूं, मुझसे तो कलाम नहीं हो सकता, कलाम तो सिर्फ पादरी सुना सकता है। यिर्मयाह की किताब उसका पहला बाब निकाले जरा मेरे साथ। यिर्मयाह की किताब। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हमने एजेंट ऑफ चेंज बनना है। कैसे बनना है? यिर्मयाह से सीखेंगे। तब्दीली, बहालियत हमने अपने घर पे लेकर आनी है। कैसे आएगी? पहले हम तब्दील आज होंगे। आमीन, आमीन। पहले हम तब्दील होंगे, फिर घराने को तब्दील करेंगे, फिर सोसाइटी को तब्दील करेंगे, फिर कम्युनिटी को तब्दील करेंगे। ये बुजुर्ग नहीं करेंगे, ये जवान करेंगे। आखिर जमाने में जवानों से कलाम किया गया है। आमीन, प्रेज गॉड। मैं और आप जवान ही है और खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है। खुदा निशानियां भी हमारे वसीला से दिखाता है। आमीन, प्रेज गॉड। सो लिहाजा एजेंट ऑफ चेंज कैसे बने, इनकलाब और तब्दीली कैसे लेकर आए। यिर्मयाह की किताब उसका पहला बाब पढ़े जरा।
पहला बाब और उसकी आयत है 6 से लेकर 10वीं तक। तब मैंने कहा, आए खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मैं तो बच्चा हूं, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं कैसे कलाम सुना सकता हूं? लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कहा करके मैं छोटा बच्चा हूं, मुझसे कलाम कैसे सुनाया जाएगा? मैं तो अभी मिच्योर नहीं हुआ। समझ में मिच्योर होने की जरूरत है। कलाम पढ़ा करें, उसके अहकामात पढ़ा करें। आमीन। आप बुजुर्गों से भी ज्यादा, जिनके सफेद बाल हैं, उनसे भी ज्यादा मिच्योर होंगे। मैं बताऊंगा कैसे मिच्योरिटी आती है, आगे चलेंगे। हवाला पढ़े। जिस किसी के पास यिर्मयाह छोटे बच्चे मैं भेजूंगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? तू जाएगा फिर, और जो कुछ मैं तुझे कलाम दूंगा वो तू करेगा, बोलेगा। तू उनके चेहरों को देख के ना डर कि मैं तो छोटा बच्चा हूं, ये सारे उम्र में बड़े हैं, ये सारे मैच्योर है, मैं इमैच्योर हूं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, इनका तजर्बा ज्यादा है, मेरा तजर्बा नहीं है। ये कलाम नहीं कह रहा। ऐसी बातें हमने करनी नहीं है। खुदावंद हमसे कलाम कर रहा है और हमने जाना और सुनाना है, भले कोई भी हो। मैच्योरिटी खुदावंद के कलाम से आती है। आमीन। प्रेज़ गॉड। आगे पढ़े। और एजेंट ऑफ चेंज, अभी आप देखेंगे इस छोटे बच्चे यिर्मयाह को एजेंट ऑफ चेंज बनेगा। ये तब्दीली और बहालियत लेकर आएगा। पढ़े आगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तब खुदावंद ने हाथ बढ़ा के मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। आज के दिन मैं तुझे किस पर? कौमों पर। हमसे खुदा आज कलाम कर रहा है कि हम कौमों के लिए तैयार हो, और सिर्फ कौमों पर नहीं, जितनी भी हुकूमतें बच्चे आगे कलाम सुनाएंगे तब्दील हो जाएंगे। सिर्फ कौमों पे इख्तियार नहीं है हमारा, बल्कि गवर्नमेंट्स पर इख्तियार है। सिर्फ इस मुल्क नहीं, सब मुल्कों को अगर हम कलाम सुनाए तो रूह की मामूरी से सुनाएंगे तो वह तब्दील हो जाएंगे। ये है एजेंट ऑफ चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए हमारे अंदर। बच्चे नहीं है हम, समझ में जवान बने। आगे पढ़े। और ढाई उखाड़े, इस कदर बच्चा लेवल में पहुंच जाएगा कि वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा। कौन से? जी, बाकी लोग लेवल में होते हैं, हम नेक्स्ट लेवल में होंगे। इतना मसा, इतनी पावर होगी हमारे अंदर, और है भी। आमीन। हम प्रो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव नहीं, प्रो एक्टिव। प्रो एक्टिव समझते हैं? प्रो एक्टिव का मतलब है अभी कोई चीज वजूद में नहीं आई, लेकिन पहले से आप एक्टिव है, बहाल है, पहले से आप खुदा के मसा से मामूर है। आमीन। प्रेज़ गॉड। आगे पढ़े। मैं बदुओं को हलाक कर दूंगा, फिर क्या होगा? और मैं खुदा के कलाम को तामीर करूंगा। ये किसका काम है? मेरा और आपका। आगे। और लगाए। आमीन। प्रेज़ गॉड। दाऊद को जब मसा किया गया था, छोटा बच्चा था, वो बच्चों से कलाम खुदा करता है। यीशु मसीह लूका की इंजील 2 बाब, जब छोटा बच्चा था, 12 साल की उम्र थी उसकी, वहां पे हैकल में वो कलाम सुना रहा था। सैमुएल को छोटा बच्चा था, आवाज दी थी खुदावंद ने। मैं गवाही देना चाहता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। मैं जब भी रात में सो रहा होता हूँ, अंधेरा होता है, कमरा बंद होता है, प्रॉपर आवाज आती है, साजिद साजिद साजिद। और आज के बाद आप लोगों को भी ऐसी आवाज आएगी। जब कभी ये आवाज आए, फौरन बैठ के दुआ करनी है। क्या करनी है? क्योंकि खुदावंद आपको पुकार रहा है। और ये हो चुका है मेरे साथ, कई दफा एक्सपीरियंस हुआ है। जब भी होता है मैं दुआ पे बैठ जाता हूँ। आपके साथ भी होगा, ये जरूर होगा। जब भी आवाज आएगी, आपका नाम क्या है? अलियान। अलियान, जब भी आपको आवाज आए, आपने क्या करनी है? दुआ करनी है, डरना नहीं है। खुदावंद की आवाज है। सैमुएल छोटा बच्चा था, दाऊद छोटा बच्चा था, यीशु मसीह छोटा बच्चा था, दानियल छोटा बच्चा था, सदर मित्र अब्दुल छोटे बच्चे थे, यिर्मयाह छोटा बच्चा था। खुदा ने बच्चों के वसीला से काम किया है। रसूल जो शागिर्द है यीशु मसीह के, वो सारे जवान थे, सब यंग हैंडसम गाय थे। आमीन। प्रेज़ गॉड। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमें खुदावंद एक और बात सिखाना चाहता है। मत्ती की इंजील निकाले मेरे साथ, मत्ती 7 बाब 28 और 29। कभी भी ये ना कहा करे कि मैं तो अभी छोटा बच्चा हूं, मेरा टाइम नहीं आया।
میرا ٹائم آج آ چکا ہے. کب آیا ہے؟ آج آ چکا ہے. آج مجھ سے خداوند کلام کرے گا. پریز گاڈ. 7 باب اور اس کے 28 اور 29 پڑھیں جی. 7 باب 28 اور 29 ہے. پریز گاڈ. خداوند آپ لوگوں کا بچوں کا ذہن کھولے, مسا سے مبوب کرے. رسا کھندرا بلا رسا کھندرا. چلے پڑھیں بھائی یا بہن, بلند آواز سے پڑھیں. جی جی کوئی بھی پڑھے, بس پڑھے. جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی. یسوع مسیح پتہ کتنے سال کا تھا؟ 30 سال کا. اور جب وہ بات کرتا تھا بھیڑ حیران ہوتی تھی اس سے, اور بھیڑ حیران ہوئی اس کی باتیں سن کے. پھر کیا ہوا؟ کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بات کرتا تھا جن کے سفید بال ہو چکے ہیں. وہ ان سے جب بھی بات کرتا تھا صاحب اختیار کی طرح بات کرتا تھا. کس طرح؟ صاحب اختیار, پوری اتھارٹی کے ساتھ, پوری پاور کے ساتھ, کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی نروسنس نہیں, کمپیٹنسی, کانفیڈنس کے ساتھ. آمین. صاحب اختیار, اتھارٹی. جب بھی کسی سے بات کرے, بھلے سفید بالوں والا ہو, بولے مجھے کلام کے احکامات آئے, اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ احکام سے نہیں ہے, اتھارٹی کے ساتھ بات کیا کرے. فقی فریسی یسوع مسیح سے ڈرتے تھے. تعلیم اور علم کے اعتبار سے وہ اس قدر بڑھ چکا تھا. آمین. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ میں تو اتنی آگے تک بات کر دی ہے. وہ ٹرانسفارمیشن, تبدیلی, بحالیت کلندر آباد میں لے کر آنی ہے, کمیونٹی میں کام کرنا ہے. یہ سب ہوگا کیسے؟ اتنی آگے ہم نے بات کر دی ہے. ہم بچے نہیں ہیں, لیکن اتنی آگے گرو کریں گے کیسے؟ کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے گرو؟ 3 چیزیں ہیں آج میں فارمولا بتانا چاہتا ہوں جو میں نے 18 سال کی عمر سے شروع کیا جب مجھے خدا نے سکھایا. فارمولا یہ ہے, میں ابھی ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. پہلا فارمولا, اپنی ماں باپ کی عزت کرنا. آمین. اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ زور سے بولے. عزت کن کی؟ ماں باپ کی. پریز گاڈ. سب سے پہلا کام جو میرے 18 سال کے بعد خداوند نے میری زندگی میں کیا, میں نے اپنی ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دی. اور اس کے بعد خدا نے مجھے کام دیا. کیا دیا؟ کام دیا. اور خدا نے پھر حضوری دی. کام کرنا ہے خدا کی حضوری میں رہ کر. آمین. اور اس کے بعد پھر خداوند نے مجھے اپنے آئین سکھائے ہیں. تو 3 چیزوں کو ہم سیکھیں گے. پہلے ہم سیکھتے ہیں ماں باپ کی عزت کیسے کی جائے. امثال 20:20 نکالیں. امثال کی کتاب 20 باب اور اس کی. داؤد اپنے ماں باپ کی عزت کرتا تھا. یوسف ایسے نہیں پریزیڈنٹ بن گیا ایجپٹ کا, مصر کا پریزیڈنٹ ایسے نہیں بنا, وہ اپنے باپ کا فرما بردار تھا. آمین. یسوع مسیح کو جب وہ ہیکل سے اس کے ماں باپ لے کے گئے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کیا کرتا تھا. امثال کی کتاب 20 باب اور اس کی 20 آیت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایجنٹس آف چینج بن جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لیڈرشپ والا کام کرے, صرف فالوورز نہیں, یسوع کے فالوورز نہیں رہنا, گرو کرنا ہے, برگزیدہ بننا ہے, کیونکہ ہم اس کی بادشاہی کے فرزند ہیں. امثال 20 باب اور اس کی 20 آیت پڑھے. جو اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ لعنت. پھر اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا. ابھی بتاتا ہوں بدروہیں ہمیں کیسے کنٹرول کرتی ہے. میں نے اپنے ماں اور باپ کو کہا کہ تو میرا کس چیز کا باپ ہے, تو میری کس چیز کی ماں ہے. میرے فرینڈ کے پاس تو اس کے باپ نے اس کو آئی فون دیا ہے 5 لاکھ کا, مجھے تو نے آج تک کیا دیا ہے. یہ ہے لعنت. آپ اپنے ماں اور باپ کو لعنت دے رہے ہیں. تو نے میری زندگی میں کیا کیا ہے؟ میرا دوست تو ڈاکٹر بن گیا ہے, میری تو اسکول کی فیس نہیں دے سکتا آج تک. یہ ہے لعنت. ابو امی کچھ کہہ رہے ہیں, نہیں سننا, اپنی مرضی کرنی ہے, اپنی بات کو پورا کرنا ہے. بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں, امی امی میری فرینڈ کے پاس تو وہ کون سا آسن جوفا سب سے مہنگا برانڈ, اس کا کپڑے ہیں, میرے پاس کیا کپڑے ہیں, میرے پاس کپڑے نہیں, کبڑ بھری پڑی ہوئی ہے, نہیں استعمال کرے گا. ایجنٹ آف چینج تو میں نے بہت آگے کی بات کر دی تھی. بحالیت انقلاب تب آئے گا جب ہم یہاں سے میچور ہوں گے. کہاں سے؟ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بوڑھے ہو چکے ہیں, بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں, بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس سے خالی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے بات کرنی کیسے ہوتی ہے. آمین.
लेकिन हम आज के बाद साहिब इख्तियार की तरह बात करेंगे। किसकी तरह? ऊंची बोले, जरा सीना चौड़ा करके बोले, आज के बाद साहिब इख्तियार की तरह बात करेंगे। Praise God। अभी सीखेंगे साहिब इख्तियार कैसे बने। तो सबसे पहले माँ बाप की इज्जत करनी है। भले आप डबल PhD कर ले, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप को लानत करेंगे तो खुदावंद पता है क्या कह रहा है कि मैं तेरा चिराग डबल PhD वाला कहां डाल दूंगा? सॉरी, गहरी तारीकी में। प्रेज गॉड। गहरी तारीकी में और अंधेरे में कौन आता है? शैतान आता है। और जब शैतान आ जाता है फिर बंदा कहता है मेरा शराब पीने को दिल करता है, तब मेरा सिगरेट पीने को दिल करता है, मेरा वेब लगाने को दिल करता है, मुझे मेकअप और महंगे महंगे कपड़े पहनने का दिल करता है, मैं शॉपिंग करूंगा ऑनलाइन, दराज से करूं, कहीं से भी करूं, लेकिन मैं सब वो काम करूंगा जो इब्लीस कह रहा है। ये है तारीकी। जिद, हर बात पे जिद शुरू हो जाती है, क्योंकि बदरुओं ने घेरे रखा होता है। बच्चों से खुदा भी कलाम करता है और बच्चों को बदरुएं भी पकड़ लेती है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? जिद की वजह से। बोला करे यस अम्मी, मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूं, बहुत 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 खिदमत की है मैंने और कर रहा हूं, और इस वजह से खुदा ने मेरा चिराग कभी भी अंधेरे में नहीं डाला, कभी भी मुझे इब्लीस के हत्थे नहीं चढ़ने दिया। आमीन, प्रेज गॉड। इफ्स छठा बाप, मैं वैसे ही बताता हूं आप लोगों को। वहां पे लिखा है कि तू अपने माँ बाप की क्या कर? प्रेज गॉड। तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, ताकि जमीन पर तेरा क्या हो? भला हो। भावें जितनी मर्जी स्टडी कर लो, जितनी मर्जी फर्स्ट पोजीशन आ लो, जितने मर्जी अच्छी जॉब कर लो, कभी भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। ये मैं बता रहा हूं, आज क्लियर कर दूं ये बात। भला तभी होगा जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे। आमीन। जमीन पर भला हो, और फिर इसके साथ वादा भी है कि जब तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो तेरी भलाई होगी। तू मैट्रिक पास हो या ना हो, खुदावंद आपको तरक्की देगा। आमीन, प्रेज गॉड। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और टोकन में खुदावंद कुछ देना चाहता है, लकी ड्रॉ में आपको कुछ देना चाहता है। आपका भला जमीन पर होगा और साथ आप पूरी उम्र के साथ जिंदगी गुजारोगे। कितनी उम्र के साथ? पूरी उम्र के साथ। तेरी उम्र दराज होगी। ये वादा है इस अहकाम के साथ। ये पहला वादा है जिसके साथ 10 अहकाम में से एक अहकाम है जिसके साथ वादा भी है। आमीन। और दूसरी बात, खुदा ने आदम को बनाया, एक तो माँ बाप की इज्जत करनी है, दूसरा काम करना है। क्या करना है जी? फारिग नहीं रहना। काम करने वालों को खुदा चुनता है। आमीन। जब खुदा ने आदम को बनाया, आदम को इसलिए नहीं बनाया था तू दुआ करना। दुआ के लिए कॉन्सेप्ट गलत है। दुआ के लिए आदम को नहीं बनाया था, प्रस्तिश के लिए आदम को नहीं बनाया था, गिरजे घर आदम को भेजने के लिए नहीं बनाया था, उसको सजदे करने के लिए नहीं बनाया था। खुदा ने आदम को बनाया था काम करने के लिए। आमीन। जब आप पैदाइश 2 बाब पढ़े तो वहां पे लिखा है कि उसने आदम को बागे अदन में रखा। कहां रखा? पढ़ते नहीं है छोटे, बात सुने, ध्यान से सुने आप, सुनने वाली बात है, बरकत वाली बात है। तो खुदा ने बागे अदन बना के आदम को वहां रखा और उसे कहा कि तू इस बाग में काम कर। क्या कर? जी, काम कर। इस बाग की बागबानी कर। क्या कर? बागबानी कर। और जब उसने बागबानी करना शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया, फारग नहीं है, सारा दिन वो गेम नहीं खेलता रहता, सारा दिन फेसबुक नहीं स्क्रॉल करता रहता, सारा दिन व्हाट्सएप नहीं यूज करता, सारा दिन इंस्टाग्राम नहीं यूज करता, माँ बाप को नहीं कहता कि मैं सुबह देर से उठूंगा। उसको काम के लिए बनाया गया था, मुझे और आपको काम करना, फारग नहीं रहना। दुआ नहीं, प्रस्तिश नहीं, चर्च नहीं, ये नहीं था कॉन्सेप्ट। ये था आपको और मुझे बनाया काम करे। ये जब उसने देखा कि ये बाग की बागबानी कर रहा है, प्रेज गॉड, आदम को बड़ा काम का बंदा है, इसका काम बढ़ा दो, इसको ब्लेस कर दो। और फिर उसने बाग की निगहबानी भी की है। क्या की है? निगहबानी भी, बागबानी भी की है और निगहबानी भी की है। जब देखा कि आदम वाकई में निगहबानी भी बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहा है, इसका फिर काम बढ़ा दो। ये फारिग बंदा नहीं है, फारिग बंदों से खुदा कलाम नहीं करता, फारिग बंदों को, बच्चों को यूज नहीं करता खुदा, काम वाले बच्चों को यूज करता है। किनको? Praise God, hallelujah. So खुदा ने आदम को कहा कि इन तमाम जानवरों के नाम रख।
क्या कहा? तीसरा काम दिया। खुदा काम वालों को ढूंढता है जो काम करते हैं, जो फारग वेले हैं, लेजी है। आई एम सॉरी टू से, खुदा की बादशाही में वो काम नहीं कर सकते। एजेंट ऑफ चेंज अगर बनना है तो हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। प्रेज गॉड। ये माइक ऑन है, माइक ऑन कर दीजिए। ओके ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। हाथों को ले रखे, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। चले आगे सीखते हैं। तो दुआ और प्रस्तिश और इबादत जो चर्च बना था वो किस लिए बनाया गया? आपको पता है, पैदाइश 3 बाब पढ़े तो खुदा वहां पे ठंडे वक्त पे आता था और आदम से बात किया करता था। आमीन। आदम से क्या करता था? वो बात करता था। वो खुदा की हजूरी में रह के काम कर रहा था, सिर्फ बगैर हजूरी के काम नहीं कर रहा था। आमीन। मुझे और आपको बनाया गया काम के लिए, और काम करना कैसे है? खुदा की हजूरी में रहकर। आमीन, प्रेज गॉड। खुदा उससे ठंडे वक्तों में बात करता था। जब आप जॉब के लिए जाए, ड्यूटी के लिए जाए, बिजनेस के लिए जाए, स्टडी के लिए जाए, स्कूल कॉलेज में जाए, जहां कहीं पे जाए, काम के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप फारिग नहीं है, लेकिन खुदा की हजूरी से मामूर होके जाए। आमीन, प्रेज गॉड। इसलिए दुआ का बोला गया था। जो हर वक्त दुआ करते हैं खुदावंद उनके नजदीक है। आमीन। तो दुआ करने की जरूरत है, प्रस्तिश और इबादत करने की जरूरत है। चर्च इसलिए बनाया गया है कि संडे को आए, मसा से मामूर होके, मंडे को जॉब पे जाए, मंडे को जाए स्कूल, और देखना आप फर्स्ट पोजीशन ले जाएंगे। आमीन। खुदा की हजूरी से मामूर होके जाए। किस तरह? हर वक्त दुआ करते रहें, कलाम पढ़ते रहें और उस पर ध्यान देते रहें। यह है खुदा की हजूरी से भर के जाए। और जब आप खुदा की हजूरी से भर के कोई काम करेंगे, आपको पता है जब साउल को बदरूस सताती थी, पहला सैमुएल उसका जो है वो 16 बाब है, पढ़ते नहीं, मैं वैसे ही बताता हूँ। जब वो बदरूस को साउल को सताती थी तो दाऊद जवान लड़का था, वो सिर्फ बरबत बजाता था। क्या बजाता था? जब वो बरबत बजाता था बदरू निकल जाती थी। आमीन। खुदा की हजूरी से मामूर होके गाया करे, खुदा की हजूरी से मामूर होके काम किया करे। सिर्फ रूह को इधर चर्च में नहीं इस्तेमाल करना। रूल कुदस आएगा, सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें? जी। मैथ्स की बात समझ नहीं आ रही, मैथ्स के फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे, खुदावंद मेरी मदद कर, खुदावंद मेरी मदद कर, मैं अच्छा स्टूडेंट हूं और मैं क्लास में फर्स्ट पोजीशन लूंगा तेरी हजूरी से मामूर होके। आमीन, प्रेज गॉड। काम नहीं किया जा रहा। मैं नर्स हूं, मैं अपनी गवाही देता हूं, सबसे बेस्ट आईवी लाइन मेरी थी। मैं अपनी बल्ले बल्ले नहीं, गवाही दे रहा हूं। जब भी मैं फ्लोर पे खड़ा था, बोलते साजिद को बुलाओ काम के लिए, और मैं जब जाता रूह से मामूर होके जाता कि लाओ मुझे काम दो, मैं करूंगा, क्योंकि सारी कौम रूह से खाली है, मैं रूह से मामूर हूं। मैं जब काम करूंगा खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। आमीन, प्रेज गॉड। खुदा की रूह से मामूर होके काम किया करे। आप जिस भी फील्ड से हैं, रूह से भरे। ड्यूटी जाने से पहले दुआ किया करें, और फिर देखें खुदा ने बिजनेस की रूह, माहिरगिरी की रूह, गवर्नमेंट की रूह, जॉब की रूह ये डालता है हमारे अंदर। खरूज की किताब 31 चैप्टर अगर आप वहां पे पढ़े ना, तो वहां पे आपको यहूदा के 2 लड़के मिलेंगे, और वो महारत में, एक्सपर्ट में, कपड़े सीने में और उन ज्वेलरी सोने पे काम करने में उनको महारत थी, क्योंकि खुदा ने उनको रूह दी हुई थी। काम करने की रूह है। आमीन, प्रेज गॉड। पढ़ने की भी रूह है। खुदावंद से मांगा करे, खुदावंद तू मुझे पढ़ने वाली रूह दे। तो सबसे पहले माँ बाप की इज्जत करनी है और काम करना है, फारग नहीं रहना। हाँ जी, गेम्स नहीं खेलनी, काम करना है, और काम करना है खुदा की हजूरी से मामूर होके। फिर इनकलाब आएगा, फिर तब्दीली आएगी, फिर घराना तब्दील होगा आपको देख के, फिर कम्युनिटी तब्दील होगी आपको देख के। यार ये छोटे से बच्चे हैं, इन्होंने वक्त डाल दिया है, क्योंकि आप खुदा की मसा से मामूर होके और उसके आइन से भर के काम करते हो। समझ में जवान हो, उम्र में बच्चे हो। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक और हवाला निकाले। तीसरी बात, साहब इख्तियार की तरह बात किया करें। 119 ज़बूर निकाले। प्रेज गॉड, हालेलुया। रसा खेदरे बाला रसा खंदरा, रेबेले रसे खेदरे बाला रसा खंदरा। 119
खुदावन ज़हन खोल, एक ही सेकंड जरा। (94) verse 119, 94 verse. तीसरी चीज हमें सीखने की जरूरत है, खुदा के असूल। क्या सीखने की जरूरत है? खुदा के आयन। बोले प्रेज़ गॉड। खुदा के आयन और खुदा के असूल आने चाहिए हमें, तब हम क्या होंगे? पढ़े जरा जी 94 से पढ़े। अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती, अगर तेरे कलाम मेरे अंदर ना होता, इधर मेरे सामने देखे बेटा, इधर देखे, अगर कलाम मेरे अंदर ना होता तो फिर क्या होता? तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। साहिब इख्तियार हम नहीं बन सकते जब तक खुदा के आइन की बातें हमारे दिल में ना हो। आमीन, प्रेज़ गॉड। जब तक हमें उसके असूल ना पता हो। गाड़ी जो चलती है वो अगर उसमें हम पानी डाल दें तो चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि उसका असूल, रूल, प्रिंसिपल वो ये है कि उसमें फ्यूल डाला जाए। आमीन, प्रेज़ गॉड। तो हमें काम साहिब इख्तियार की तरह करना है, आइन से भरने की जरूरत है हमें अपने आप को। प्रेज़ गॉड। 144 वर्ड्स पढ़े जरा। प्रेज़ गॉड। बाबा साकंदरे मलारा साकंदरा। 144 असूल पर बात की जाएगी, ऐसे साहिब इख्तियार की। जी पढ़े। तेरी शहादतें, तेरे आइन, तेरे रूल्स। मैं खुदा की गवर्नमेंट का हूं। गवर्नमेंट मतलब बादशाही, और मेरा किंग यीशु मसीह है। आमीन। तो मैं खुदा की गवर्नमेंट का हूं, और मैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लॉज और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके असूल और उसके कानून से भर के बात करूंगा। अब पढ़े। तेरी शहादतें सच्ची है हमेशा, वो मुझे फहम देती है। किसकी? कौन हमें फहम देता है? हमें मिच्योर कौन करता है? खुदा का कलाम हमें मिच्योर करता है। शरीयत को रट ले, पी ले इसको। कोई दोस्त बोले हाँ भाई तेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, पी ले शराब, लगा दम मिटा गम। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा की हुकूमत ने मुझे ये कानून नहीं सिखाया। मेरी खुदा की हुकूमत ने ये कानून, असूल ये सिखाया है कि किसी भी नापाक चीज को नहीं छूना, क्योंकि अगर मैं नापाक चीज को छूऊंगा तो वो मुझे कबूल नहीं करेगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। उसके असूलों से भरे। कोई अगर फजूल बात करे तो उसको अपने शरीयत बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, रूल। जो बंदा रूल पर चलता है उसको जिंदगी मिलती है। आमीन, आमीन। झूठ नहीं बोलना। कोई दोस्त कहे झूठ बोल दे मैडम से, कोई बात नहीं आज हमने नहीं होमवर्क किया। नहीं, झूठ नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो इब्लीसी और बदरुएं मुझे घेर लेंगी। मैं नेगेटिव वर्ड नहीं बोलता। मेरी टर्म एंड कंडीशंस, मेरी पॉलिसीज खुदा की तरफ से ये नहीं है। मैं अपने माँ बाप की इज्जत करूंगा, ये कानून उसने मुझे सिखाया है। कानून पर चलेंगे तो जिंदगी पाएंगे। आमीन, प्रेज़ गॉड। ये बात है। अगर कोई बहन बोले कि कोई बात नहीं, आप जो है वो टी शर्ट और जीन्स पहन सकती है, कोई मसला नहीं, बोले नहीं, मेरे गवर्नमेंट ने, मेरी हुकूमत ने मुझे सिखाया है हयादार लिबास पहने। कौन सा लिबास? ये हवाला जरा निकाले मेरे साथ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। साहिब इख्तियार की तरह बात किया करे, किसी बात की जुम्बिश नहीं होगी। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं है। पूरे इख्तियार, अथॉरिटी के साथ बात किया करे। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम खुदा के रूल से और उसके फजल से, यानी कि उसके रूह से और माँ बाप की इज्जत करने से भरे हुए होंगे। आमीन, प्रेज़ गॉड। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं है।
Praise God. Koroba sakandare la balara sakandara. खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। ज़ेन खोल दे यसु, ज़ेन खोल दे। रासा खंडरा रासा खंडरा। जी पढ़े पढ़े पढ़े। जिसने पहले निकाल लिया वो पढ़ सकता है। पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब 9वीं और 10वीं। बच्चों में से बुलंद आवाज से जिसने पहले निकाल लिया वो पढ़े। प्रेज गॉड। निकाल लिया, पढ़ो पढ़ो। इसी तरह बच्चियां हयादार लिबास पहने और फिर शर्म के साथ और परहेजगारी पाकीज़गी के साथ। इधर देखे बच्चे मेरी तरफ। कोई बहन बोले ये ड्रेस पहन लो, ये लहंगा पहन लो, ये मिनी स्कर्ट स्कर्ट मैक्सी पहन लो, नहीं, खुदा के आइन मुझे ये नहीं सिखाते। मैं शर्म में और परहेजगारी में जिंदगी गुजारती हूं क्योंकि मैं एजेंट ऑफ चेंज हूं। आमीन। कौन हूं मैं? मेरे वसीला से खुदा कलाम करता है, मेरे वसीला से खुदा लोगों को तब्दील करता है। मुझे पाक रहने की आदत पड़ चुकी है क्योंकि मैं उसके अहकाम पे चलता हूं। आगे पढ़े। अपने आप को संवारे, अपने आप को संवारे। कैसे संवारे? ना के बाल नहीं गूंदने और सोने हाँ जी, और मोतियों हाँ, ये नहीं कि गोल्ड से बस अपने आप को गोल्ड ही भर लिया हो, सर से लेके पैरों तक गोल्ड ही गोल्ड। कलाम ये नहीं कह रहा। आगे क्या कह रहा है? बल्कि नेक कामों से अपने आप को संवारे। कैसे संवारे? जैसे खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप आमीन आमीन। बस इतना ही काफ़ी है। तो जब हम माँ बाप की इज्जत करेंगे, खुदा की हुजूरी में रह के काम करेंगे, उसके अहकाम को समझेंगे। कोई बुजुर्ग आके कहे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उसको कहें कि आप मैच्योर नहीं हैं, आप इमेच्योर हैं। मेरे खुदावंद ने पॉलिसीज़ और टर्म एंड कंडीशन सिखाई हुई है मुझे। मैं कानून से हट के बात नहीं करता क्योंकि उसकी हुकूमत का फर्जंद हूँ मैं। आमीन। खुदा आखिर ज़माना में बच्चों के वसीला से अपनी हुकूमत एजुकेशन सिस्टम में लेके आना चाहता है। रूह से मामूर होकर काम किया करे। कोई स्टूडेंट पूछे आप फर्स्ट कैसे आ गए, बोलो खुदावंद ने किया है, ये उसका जलाल जाहिर होता है। आमीन। दाऊद की मानद बने। जब तबला बजाए, जब हारमोनियम बजाए या गाए, इस कदर रूह से मामूर होके आए कि जितनी भी जमात बैठी हुई है वो मसा से भर जाए। जैसे साउल के अंदर से बदरू निकल जाती थी, इस कदर लेवल होना चाहिए। तभी मैंने कहा था कि लेवल नहीं, नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। आमीन। एक्टिव नहीं, प्रो एक्टिव होना चाहिए। जरूरी नहीं यहाँ पे आके कलाम सुनाया जाए, जरूरी नहीं दुआ की जाए। हल्का सा हारमोनियम का एक बटन दबाओ, बदरुए भाग जाए। प्रेज़ गॉड। इतना मसा साहब इख्तियार माँ बाप की इज्जत, खुदा की हजूरी में रहकर काम किया करे। 4-5 काम एक साथ मैं कर लेता हूँ, शुक्र है खुदावंद का। स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, बेड साइड भी करता हूँ, बिजनेस भी देख रहा हूँ, बच्चों को भी देख रहा हूँ, फैमिली को भी देख रहा हूँ। ये ना कहा करे मेरे पास टाइम नहीं, दुआ करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये मत कहा करे। बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। कौन सी सोहबत? बुरी सोहबत। बुरी सोहबत से दूर रहा करे। जब देखा कि ये दोस्त मेरा नेगेटिव बात कर रहा है, गाली गलोच कर रहा है, उसको कहा करे कि मैंने ये आइन सीखे हुए हैं कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहे जुबान को बदी से बाज रखे। मैं इस तरह की बात नहीं करता, मैं तेरा दोस्त नहीं। तू नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव हूँ। तू खुदावंद में नहीं, मैं खुदावंद में हूँ। आमीन। प्रेज़ गॉड। एक आखिरी हवाला मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद क्लोज करेंगे। आपको पेज नंबर 876 निकाले। ये खुदावंद ने मुझे बहुत भारी बोझ दिया है। Praise God. मेरे ख्याल से 876 है। यीशु मसीह ने हमें फॉलोवर से लीडर में तब्दील करना है और लीडर के बाद हमने एजेंट ऑफ चेंज बनना है। तब्दीली और बहालियत हमारे वसीला से आएगी कलंदराबाद में। नेक्स्ट लेवल और प्रोएक्टिव लेवल अपने अंदर रखा करें। आप बच्चे नहीं है। मिल गया? उसका दूसरा बाब, पेज नंबर मुझे भी बताया जरा कौन सा है, पुराने छापे वाली।
आप पेज नंबर बताना। 800। अच्छा, उसका दूसरा बाब, चले निकाल लिया तो पढ़े। उसका दूसरा बाब और उसके पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक। मैं अपनी दीनदार पर खड़ा रहूंगा, पोस्ट गार्ड पर। कहां पर जी? पोस्ट गार्ड का मतलब है जहां पे गार्ड्स खड़े होते हैं, मैं उधर खड़ा रहूंगा। वहां खड़ा होकर करूंगा क्या? आगे पढ़े। और बुर्ज पर चढ़ के इंतजार करूंगा। क्या करूंगा? किसका इंतजार करूंगा? खुदावंद यीशु मसीह का। आवाज नहीं सुनाई देती खुदावंद यीशु मसीह की हमें, पता है क्यों? जिस गाड़ी में हम बैठे होते हैं उस गाड़ी में ये चल रहा होता है, ये क्या है? गाने। खुदावंद की आवाज नहीं सुनाई देगी। गाड़ी में बैठेंगे म्यूजिक सुनाई देगा। घर जाएंगे अम्मी अब्बू बहन भाई ब्ला 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 ब्ला, ये क्या है? नई आवाज सुनाई दे रही खुदावंद की। कैसे कलाम करेगा? हम तो रोया तक की बात कर रहे थे, अभी तो हम आगे नहीं बढ़े। रोया तक कैसे पहुंचेंगे? खुदावंद पता है क्या कहता है? कुछ देर अपने लिए टाइम निकाले कि जहाँ पे आप अकेले जाएं। कहाँ पर? किसी बंद कमरे में जाएं और अपने माँ बाप को बताएं कि मैं वहाँ पर दुआ कर रहा हूँ और मैं वहाँ पर खुदावंद का इंतजार करूँगा। किसका? आमीन आमीन, प्रेज़ गॉड। दोस्तों के पास जाते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, गाड़ी में बैठते हैं म्यूजिक, घर में जाते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, स्कूल में जाते हैं ब्ला, ऑफिस में ब्ला, हर जगह ब्ला ब्ला। सुनेंगे कब आवाज खुदावंद की? जब हम तन्हाई में होंगे। कहाँ? जी, कलाम कह रहा है कि मैं ऊंची जगह जाऊंगा जहां कोई नहीं और मैं अपने आप को आइसोलेट करूंगा, मोबाइल अपना बंद कर दूंगा और बस चुप करके, खाली करके, अपने ख्यालों को, अपने दिल को खाली करके खुदावंद के हुजूर बैठूंगा। आमीन। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? पढ़े जरा कि वो मुझसे क्या कहता है। खाली किया करें, इतनी फिक्रें, इतनी बातें। मैं आपको बताऊं कलाम क्या कहता है? मैंने आइन सीखे हुए हैं। कलाम कहता है कि ज़्यादा गम जवान का होता है, क्योंकि उसको ये गम होता है मैं फ्यूचर में करूंगा क्या, मेरे पास पैसा कैसे आएगा, मैं कामयाब कैसे होऊंगा, मैं तरक्की कैसे करूंगा। सबसे ज़्यादा गम, वास की किताब 12 बाब कहती है, तो सबसे ज़्यादा गम। तो अपने आप को टाइम दें। क्या दें? जाएं बंद कमरे में, थोड़ी देर बैठे। आपको खुदावंद यिर्मयाह की, दाऊद की तरह जरूर इस्तेमाल करेगा, सैमुअल की तरह जरूर इस्तेमाल करेगा। बंद कमरे में जाके बैठने, खाली करे। घर वालों को बता दो डिस्टर्ब नहीं करना मुझे, गार्डन चले जाए या कहीं चले जाए, लेकिन इन्फॉर्म करके जाए, कमरे में जाए इन्फॉर्म करके जाए, मोबाइल बंद कर दे, सब कुछ अपने आप को खाली कर दीजिए। सोच में कुछ नहीं, दिल में कुछ नहीं, और सिर्फ ये कहे क्या कहें? नहीं, इतना जोर से नहीं, आराम से, मैं हाजिर हूँ। बस ये बोलना है। जैसे आपने कहा खुदावंद मैं हाजिर हूं, फिर क्या होगा? फिर पढ़े, आगे पढ़े। मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं? फिर आगे पढ़े। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया जब मैं बाहर निकला दुनिया से। ऐसे नहीं हर जगह म्यूजिक ब्ला ब्ला। जब मैं खुदावंद के हुजूर बैठूंगा तन्हाई में, खुदावंद मैं मौजूद हूं, और चुप रहे, कुछ भी ना लेकर आए ख्यालों में, दिल में, खुदावंद फिर आपको कुछ कहेगा। क्या कहेगा? आगे पढ़े। और फरमाया भाई आपसे, 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 मुझसे, इनसे, जब हम तन्हाई में बैठेंगे, माँ बाप की इज्जत करके, आइन असूल को सीख के, मुझसे कोई बात नहीं कर सकता। मैं साहिब तमीज हूं। दाऊद साहिब तमीज था क्योंकि उसको शरीयत आती थी, और मैं खुदा की रूह से भरा हुआ हूं क्योंकि उसका फजल मेरे साथ है। शरीयत और फजल दोनों एक साथ रहती है। फजल के वसीला से रूह आती है, शरीयत के वसीला से फहम आता है। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो लिहाजा फिर क्या होगा? फिर मैं डायरी लूंगा। क्या लूंगा? आमीन। फिर मैं डायरी लूंगा, एक ब्लैंक डायरी अपने पास आज के बाद रख लें। जब खुदावंद आपको बात करे, सनसनाहट आएगी, आवाज आएगी, और फिर आप लिखना शुरू करें, तब आपको खुदा रोया देगा। क्या देगा? रोया। आगे पढ़े, आगे क्या लिखा है? रोया को डायरी पे लिख ले जो बातें मैं तुझे कहने लगा हूं। फिर क्या हुआ?
और इन बातों को जबरदस्त तरीके से लिख ले, और ये बातें होंगी, तू लिख आगे। ये उस वक्त के लिए जब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। कब करूंगा? रोया के मुताबिक मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। दानियल, यूसुफ, ये सब आगे जाके इस्तेमाल किए गए, एजेंट्स ऑफ चेंज बने हैं, बचपन से चुने गए थे। आगे पढ़े। ये चंद चीजें जो रोया तूने लिखी है, ये वजूद में आएगी। यकीन कर, ट्रस्ट कर, एतबार कर, और फिर और खता ना करेंगे। आमीन। बस इतना ही काफी है। प्रेज गॉड। सो सबसे पहले हमने लीडर्स, एजेंट्स ऑफ चेंज बनना है। क्या बनना है? आप जिससे बात करें साहिब इख्तियार की तरह बात करें। किस तरह? साहिब इख्तियार की तरह। अंकल को कलाम नहीं आता, अंकल दया की दिया करो, क्योंकि मेरे गवर्नमेंट, मेरे खुदा की हुकूमत ये सिखाती है कि दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रेज़ गॉड। आप इमेच्योर हो सकते हैं, मैं मैच्योर हूं। मैं साहिब इख्तियार की तरह बात करूंगा, मैं रूह से मामूर होकर बात करूंगा। आमीन। प्रेज़ गॉड। तो ये सब कहां से आएगा? सीख लीजिए, माँ बाप की इज्जत करने से। जब आप माँ बाप की इज्जत करेंगे, कोई अबलीसी ताकत कुव्वत नहीं आ सकती। जब माँ बाप की इज्जत आप करेंगे, फिर खुदा आपको काम पे लगाएगा। कहां पर? कलाम सुनाने पे नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं, गीत गाने में नहीं। आपको वो काम देगा। आपको वो पार्लियामेंट में लेके जाना चाहता है, आपको वो डॉक्टर बनाना चाहता है, आपको वो इंजीनियर बनाना चाहता है, आपको वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आपको बिजनेस का बॉस बनाना चाहता है। इस कदर आपको काम दिया जाएगा, कलाम नहीं। खुदा यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। और जब आप डॉक्टर, प्लम्बर, इंजीनियर, जो कोई भी हो, रूह से मामूर होके काम करेंगे, बाकी इंजीनियर फेल हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। आप कहेंगे कि खुदावंद के आइन ने मुझे सिखाया है। आमीन। प्रेज़ गॉड। रूह से भर जाएं। आमीन। फिर माँ बाप की इज्जत किया करें, काम किया करें, खुदा की हजूरी में रहकर। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी होमवर्क, खुदावंद मेरी मदद कर, तू यहाँ मौजूद है और मैं होमवर्क वाला काम करने लगा हूँ, तू मुझे अपने मसा से भर दे, तू सिखा। सिखाएगा खुदा, क्यों नहीं सिखाएगा? रूह से मांगे तो सही। जब जाते हैं हॉस्पिटल में, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, जब जाते हैं, खुदावंद इन हाथों को माहिरगिरी में तब्दील कर दे। जब मैं पेशेंट को हाथ लगाऊं, वो पेशेंट शिफा पा जाए और तेरे नाम को जलाल पहुंचे। आप जैसा डॉक्टर ना इस कलंदराबाद में होगा, ना इस मुल्क में होगा। इस कदर खुदा आपको तरक्की देगा जब आप रूह से मामूर हो जाएंगे। आमीन। प्रेज़ गॉड। उसकी आइन, उसकी बातों से मामूर हो जाएंगे। ज्यादा बात मैं नहीं करता, बताया करें लोगों को। आप ज्यादा बोलते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि जो ज्यादा बात करते हैं अंकल, वो खता भी करेंगे और उनसे गुनाह भी होगा। इसलिए मैं कम बोलता हूं। खुदा की पॉलिसीज, टर्म एंड कंडीशंस यही है। आमीन। प्रेज़ गॉड। फिर कामयाबी, सरफराजी, तरक्की आएगी। योशुआ को कहा गया था, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा इसी पर ध्यान रहे। तब तुझे, कब? जब इस पर ध्यान होगा। फजल से खुदा की रूह आती है, शरीयत से खुदा की फहम, दानिशमंदी, हिकमत समझ आती है। दाऊद बादशाह था, जबरदस्त बादशाह था, सूरमा था। वो कौन? सूरमा बने, बच्चे नहीं हम, सूरमा है। कोई बात करे, साहिब इख्तियार की तरह जवाब दिया करे। बोलो मैं मैच्योर हूं, समझ में जवान हूं। कलाम की डेफिनेशन है। अबू जाके पहले सीख कर आए कलाम से, फिर मुझसे बात करे। तजर्बे से नहीं, कलाम से हमें खुदा की मर्जी मालूम होती है, तजर्बे से नहीं। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आमीन। तो माँ बाप की इज्जत करे, खुदा की शरीयत से भरे रहे, तो खुदा की हजूरी में हमेशा डटे रहे। खुदा आपको अपने मसा से, इन्हीं में से, आप लोगों में से दाऊद निकलेगा, इन्हीं में से आप लोगों में से यर्मिया निकलेगा, इन्हीं में से आप लोगों में से सैमुएल निकलेगा, इन्हीं में से आप लोगों में से पतरस, यूहन्ना, याकूब निकलेंगे। आमीन। प्रेज़ गॉड। और सिर्फ खुदा चर्चों में नहीं इस्तेमाल करता, खुदा आपको सब कौमों के अंदर, सब सल्तनों के अंदर, हर जगह इस्तेमाल करता है। आमीन।
Praise God, sir. सबको खुदावंद बड़ी कसरत की बरकत दे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तारीकी अभी भी हमारे अंदर है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अपने माँ बाप से बदतमीज़ी की है, हमने अपने माँ बाप को लानत दी है, और तारीकी अंधेरे में अभी भी हमने इब्लीस ने हमें पकड़ा हुआ है, और हम खुदा के कलाम को नहीं समझ पा रहे। हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है खुदावंद के हुज़ूर। क्या करने की ज़रूरत है? माफ़ी मांगने की। यहाँ से जितने भी भाई हैं और जितनी भी बहनें हैं यहाँ पे लाइन बनाएंगी, और जब ये गीत चल रहा होगा ज़बूर 119, आप दुआ करेंगे और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा, और खुदा की रूह आप लोगों को सबको छुएगी और आप खुदा के मसा से भर जाएंगे, और उसके बाद आप खुदा की रूह से मामूर होकर काम किया करेंगे, क्योंकि आप ज़मीन के गवाह इंतहा तक गवाह बनोगे। आमीन। Praise God। तो माँ बाप से जिसने बदतमीज़ी की है वो माफ़ी मांगे अभी खुदावंद के ज़ूर, और आज के बाद मैं इज़्ज़त करूँगा ताकि बरकत पर बरकत आए। तो ज़बूर तेरी निजात दे शौक दे विच हम ये गाएंगे, और साथ साथ हम दुआ करेंगे। जितनी भी बहनें हैं वो यहाँ पे लाइन बनाएं, बल्कि पहले बहनें आ जाए, बहनें लाइन बनाएं। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, आप लोग खुदा की रूह से मामूर होके काम करें, मसा मसा मसा। लेकिन आप लोगों ने माफ़ी मांगनी है, दुआ में माफ़ी मांगते रहे, खुदावंद आपको माफ़ करे। खुदावंद आपको इस कदर मसा करने को है